Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss about our two left topics, that is from our previous topic we are going to see. Okay, so from the previous topic we are going to see some concepts. So including them, the first one is about Brownian motion and the second one is about diffusion. So these are the two left topics, or say which we have skipped. It is the topic which should be taught in starting of this chapter, but unfortunately we have forget it. No problem, then we can also study this here also. Okay, so first I will going to teach you the Brownian motion. Okay, so Brownian motion, then after uh, diffusion. Okay, so let us start with the topic Brownian motion or Brownian movement. Okay, so what is Brownian motion, Brownian movement? So here it is, Brownian motion is what? So this was firstly observed by who was, you must know him, the discoverer of nucleus of a cell, who is Mr. Robert Brown in the year 1848. Robert Brown in the year 1848. You should check the date whether I have written it right or wrong, but I think it's 1848 because in 1831 he has discovered the nucleus. Okay, so Robert Brown firstly observed the movement of particles when they are placed in something. So what was his observation? क्या observation था, अभी हम लोग उसको देखते हैं. So what was his observation? Okay, suppose what he did, he took a beaker. That's a very bad drawing here. Okay, so we'll draw a beaker here. So in this beaker, what he did, he took some water. The quantity is yet to be, उसको बताया नहीं गया है कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर उन्होंने लिया, बस ही टुक वाटर. So there was water in it. There was water in it. Now what happened? He took what? This is what? Water. Pure H2, not pure, but yes, किसी भी सोर्स से उन्होंने वाटर को उठाया and that was H2O. Okay? उसके बाद उन्होंने क्या किया? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर से उन्होंने क्या ले लिया? उन्होंने ले लिया pollen grains. What is pollen grain? So pollen grains are actually present in flowers, which also help in pollination. From that pollination, the insect actually suck that liquid from the plants. Okay, so pollen grain क्या है? एक मेल पार्ट ऑफ फ्लावर से लिया उन्होंने. pollen grain को उन्होंने इसमें डाल दिया. pollen grain को उसमें डाल दिया इन्होंने. ओके, तो ये क्या था? pollen grains था. तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है pollen grain. ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पे छोटे से लिख देते हैं. ओके, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं, these are pollen grains, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. ठीक है. So what was his observation?
So when pollen grains were suspended, or say suspended or kept in a beaker containing wait a minute, so containing, again we are suspended, kept in a beaker containing water. So he observed that when pollen grains were suspended or kept in a beaker containing water, they were floating or say were moving on surface of water. ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को डाला और व्हेन ही सस्पेंडेड केप्ट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, वाटर में जब बीकर था उसमें उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को डाला, he found that they were floating or were moving on the surface of water. उन्होंने देखा कि वो वाटर के सरफेस पे मूव कर रहे थे. So what was the conclusion of this experiment? तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, ऑब्जर्वेशन, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से अभी हम लोग कंक्लूजन देखेंगे. ओके, इससे क्या पता चला हमें, उसका उन्होंने रीजन क्या दिया. ठीक है, सो व्हाट वाज द रीजन ही गेव फॉर दिस, तो उनके कंक्लूजन को हमें जानना बहुत जरूरी है. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया वो भी देख लेते हैं. सो कंक्लूजन क्या था इसका, कंक्लूजन, सो ही सेड Brown concluded that Brown concluded, Brown who? Robert Brown. Brown concluded that when pollen grains were moving on surface of water, when pollen grains were moving on surface of water, they were constantly hit by when pollen grains were moving on surface of water, they were constantly hit by moving molecules of water के मॉलिक्यूल्स उसको हिट कर रहे थे, दैट इज व्हाई इट वाज मूविंग. तो इस एक्सपेरिमेंट को, जो हमने इतना सारा जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी देखा, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, व्हाट वाज द कंक्लूजन. ये तो कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ उसका कंक्लूजन निकला, लेकिन पार्टिकल्स के बिहेवियर में इसके बारे में हमें क्या पता चला. तो यहां पर एक नोट डालेंगे और हम लोग लिखेंगे क्या, नोट that when okay, so I paused the video for due to some reason. So we were talking about what conclusion, यहाँ से हमें क्या conclusion मिलता है particles के बारे में. तो उन्होंने conclusion क्या निकाला, that when, sorry not ये नहीं, particles are constantly moving. Okay,
तो इसने, ये रॉबर्ट ब्राउन के एक्सपेरिमेंट ने ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया कि दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन एंड दे आर मूविंग. सो रॉबर्ट ब्राउन कंक्लूडेड, एंड जो इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसको उन्होंने नाम दे दिया, अपने नाम से दे दिया, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन. बाद में फर्दर भी इसको स्टडी किया गया, बहुत लोगों ने इसको स्टडी किया, बाद में ये पता चला कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है. तो इसके बारे में हमें 1848 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया. 1850 और 1856 तक हमने इस बात को मान लिया कि दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग. ओके, तो अब बढ़ते हैं डिफ्यूजन की तरफ. डिफ्यूजन भी हमें वही चीज़ दिखाएगा, आई एम टेलिंग यू. वहां पे डिफ्यूजन में हमें यही चीज़ दिखाएगा कि डिफ्यूजन में हमें थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें पढ़नी है. ठीक है, डिफ्यूजन है वो मिक्सिंग को बताएगा. यहाँ पे हम लोगों ने मिक्सिंग के बारे में नहीं पढ़ा, वहाँ हम मिक्स करेंगे चीज़ों को. ठीक है, सो दैट इज वेयर द एंटायर केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम. द चेंज इन कलर, द चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज द रियल केमिस्ट्री which we are going to see in the diffusion. Okay, so I hope you have understand Brownian motion. If you have any problem, just go back and see the video again. This is a very easy topic. Okay, next, diffusion. Next is about diffusion. So first thing, what is diffusion? Diffusion is what? Intermixing of particles on their own is called as diffusion. Okay, intermixing of particles on their own is called diffusion. Diffusion takes place from a region of higher concentration to region of lower concentration. So what is diffusion? Diffusion is an intermixing of particle on their own is called diffusion. Now intermixing of particles but on their own. Trace this word, that is on their own. You are not mixing them with your hand, they are mixing on their own with the help of their properties, not properties, with the, because they are mixing with themselves only. And diffusion obey that it moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration. This is very simple funda. In science, everything, whether it's electricity, whether it's heat, whether it's anything which has energy moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration. So in class 10th you will study about potential difference actually. No? Yes, potential difference. So there you will study after potential difference that a current move from a higher concentration to the region of lower concentration. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम से ज़्यादा की ओर फ्लो करता है. So that you will study in electricity chapter. Same you will study in heat. Heat goes from a higher temperature to a lower temperature. So anything just goes from air. Air goes from higher pressure to lower pressure. So everything just follow the same path. That anything tries to go from its higher concentration to its lower concentration. Okay. For example, if you just open your tap, so your tap is connected to a tank on your roof. So from that tank has higher concentration of water and your tap water has a lower concentration. So from higher concentration to a lower concentration, due to the pressure difference, there is the water comes to your tap. So same things happens with diffusion. It takes place when there is a difference of concentration. Concentration difference nahi hoga, diffusion will not take place. Very simple. So there are a lot of experiment you can do with diffusion. So diffusion is ये vary करता है
एंड मोर इज काइनेटिक एनर्जी, और से काइनेटिक एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ओके, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स का। अब बहुत जगह पूछते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी possessed or say contained by a body due to its speed, and its mathematical formula which you will study in physics in work, power and energy, that is given by E is equal to half into mass into v square. Okay, and here energy is dependent upon v square because m is constant. Okay, so I think you have understood what is kinetic energy also. So now we'll see the rate of diffusion. The rate of diffusion मतलब different states of matter में diffusion का क्या केस होता है? Let us see that also. So solids एक तरफ liquids और एक तरफ गैसेस। यहां पे क्या होता है? गैस से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गैस से स्टार्ट करते हैं, तब जाकर के थोड़ा चीज इंटरेस्टिंग होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है इसका? हाई एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। हाई एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम, स्पीड उतना ज्यादा, स्पेस उतना ज्यादा। दोनों के बीच में क्या है? स्पेस बहुत ज्यादा है दो पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स आर हैविंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So if particles have tremendous amount of kinetic energy, then they must rate of diffusion is high, because मैंने पढ़ाया था अभी that rate of diffusion is directly proportional to the kinetic energy. जितना ज्यादा kinetic energy उतना ज्यादा rate of diffusion, क्योंकि particle जब ज्यादा तेज move करेगा then it will mix with another particle more frequently. Okay, that is why. Comes to gases, moderate rate of diffusion. यहां पे क्या है? डिफ्यूजन का रेट थोड़ा सा कम है एज कंपेरिजन टू गैसेस। ठीक है, एंड लिक्विड्स मॉडरेट रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस लिक्विड्स हैव मॉडरेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। व्हाई? बिकॉज लिक्विड के थोड़े पार्टिकल जो है गैसेस से थोड़ा कम मूव करते हैं, दैट इज व्हाई। एंड लिक्विड्स में क्या होता है? नेग्लिजिबल। बट अगर कोई बोले कि इसमें सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता ही नहीं है, सो दैट इज रॉन्ग। दैट इज अ कंप्लीटली अ रॉन्ग पर्सपेक्शन। देयर इज अ डिफ्यूजन इन सॉलिड, नेग्लिजिबल रेट ऑफ डिफ्यूजन। बट नाउ लेट अस ट्रेस सम एग्जांपल्स। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा ब्रोमीन को हम ले लेते हैं, ब्रोमीन और एयर को इसमें छोड़ देते हैं, तो क्या हो गया? दोनों के बीच में पार्टिकल्स का मूवमेंट काफी ज्यादा वाइब्रेटेड है। ब्रोमीन यहाँ पे क्या है? गैस लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं बस। वाटर के मॉलिक्यूल को देखो, प्लस एक सॉरी एक इलस्ट्रेशन मुझे दिखाना था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमने एक कार्ड रख दिया है और यहाँ पे एक और बीकर है मेरे पास। ठीक है, यहां पे एक लिक्विड भरा है X, यहां पे एक लिक्विड भरा है Y। जैसे ही मैं इस कार्ड को हटाऊंगा, ये दोनों के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। देखो, ये ऐसे और यहां से यहां ऐसे ऐसे पार्टिकल्स का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो रहा है। अब सॉलिड में डिफ्यूजन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ वी विल एक्सप्लेन द डिफ्यूजन इन सॉलिड?
Now it is quite tough to explain diffusion in solid, but as you saw in the motion chapter, what I saw in the motion chapter, when I was writing here motion, I continue to write the same thing. मैं मोशन उसको लगातार, एक बार मैंने एक पहले क्लास में मोशन लिखा था, उसके बाद से मैंने मोशन जैसा था जैसा लिखा था मैंने कभी चेंज नहीं किया. मोशन क्लास कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 14 डेज. 14 दिनों तक वो वैसे का वैसे ही था. बट व्हेन आई वाज रबिंग इट वाज नॉट रबिंग एट ऑल. व्हाई इज इट वाज सो? अगर यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो रहा होता सॉलिड में, तब तो वो आसानी से मिट जाना चाहिए था मार्कर, बट वो मिट नहीं रहा था. व्हाई इट इज सो? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है, बट हम लोग उसमें डिफ्यूजन हो सकता है और हम लोग उसको देख सकते हैं. ठीक है. और एक और एग्जांपल इसका क्या होता है ना, मेटल्स को, किसी भी दो मेटल्स को टाई करके अगर छोड़ देते हैं ना कुछ दिन के लिए, तो वो भी हो सकता है. खैर उसके लिए 2-3 साल लग जाएंगे, उसमें मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा. बट बोर्ड को अगर चौक से लिख दो, चौक से लिख करके एक कोने में उसको साइड में छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, फॉर नियरली 1 मंथ. ओके. क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, तो एनर्जी जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पाता है दूसरे पार्टिकल्स में. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रीजन क्यों है, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स, बोर्ड के पार्टिकल्स, चौक के पार्टिकल्स, दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं. इंटरलॉकिंग के चलते हम लोग उसको मिटा नहीं पाते जल्दी. ठीक है. तो आप डिफ्यूजन शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो और हाँ, गैसेस में देखो, इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है, परफ्यूम्स. परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स. ठीक है. अब क्या होता है कि यहाँ पे परफ्यूम्स के केस में क्या होता है, परफ्यूम में क्या होता है, वो परफ्यूम में क्या होता है, लिक्विड में होता है. परफ्यूम जो भी होता है, या परफ्यूम किसी भी बॉटल में भरा हो, दैट इज अ लिक्विड. बट whenever it is sprayed, it comes with the contact of atmosphere, it changes itself into vapor. वो लिक्विड काफी ठंडा होता है, जैसे ही वो टेम्परेचर उसे मिलता है ज्यादा, इट ब्रेक्स इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपने को गैस में चेंज कर लेता है. वो गैस में चेंज करता है तो क्या होता है, हम लोग अपने स्किन पे लगाते हैं. लेकिन when it is opened, परफ्यूम बॉटल को जैसे ही ओपन करते हैं, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है. दैट इज ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस. ओके. उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था उसका. एक और क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है, दैट व्हाई डज हॉट सिजलिंग फूड रीचेस योर नोज मोर फ्रीक्वेंटली देन अ कोल्ड फूड? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट अ हॉट फूड, देखो किसी भी चीज को अगर एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं. ये हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट वगैरह में. जैसे ही एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी चीज को, तो उसके अंदर के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और पार्टिकल्स थोड़े जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं. तो पार्टिकल्स के जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने से क्या होता है, और वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन. ओके. हाँ, तो डिफ्यूजन के केस में हम लोगों ने ये सारे अभी देख लिए हैं चीजें, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट और हाँ सीजनिंग फूड की मैं बात कर रहा था. सो दैट इज ड्यू टू द, बिकॉज व्हेनेवर समथिंग इज हॉट इट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी. सो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने से पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पूरे घर में घूम रहे होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और इसके कारण जो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होते होते हमारे रूम तक उसका पूरा स्मेल आ जाता है. सो दैट इज द केस व्हाई डज अ कोल्ड फूड डजंट रीचेस टू आवर नोज, बिकॉज cold food doesn't have that much energy. Okay, so I think you have learned a lot more from this class. Okay, and there will be practice session. We are not having any practice session. We already have studied 3 or 4 videos, but we haven't conducted the practice session. So in the next video we'll be having the practice session. Okay, till then, goodbye.